आमीन। हम सब तशरीफ रखेंगे। Yes, Dad. Continue. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you for another opportunity like this. आसमानी बाप, मैं आज के दिन के लिए तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा ताकि हम इस कलाम को पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले बन सकें। We thank you for your children who are gathered to hear your word at this time. और आसमानी बाप, मैं तेरे बच्चों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं ताकि तेरे कलाम को पढ़ सकें। Speak to our hearts and give us information. और तू हमारे दिलों से हम कलाम होना ताकि हम तेरे भरपूर तरीके से इस कलाम को पढ़ने वाले बन सकें। Help us to receive a word that will do us good today. और आसमानी बाप, वो कलाम जो है वो हमारे दिलों में जो है वो हमारे दिलों को छू सके। A word that will bring total healing to our lives in Jesus' name. और इनके लिए रूह का मस्सा, ताजा मस्सा जो है इनकी जिंदगियों पर मांग लेते हैं। सभी कुछ मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। At the end of this meeting, may we have cause to rejoice and glorify in your name again. और आसमानी बाप, हम इस मीटिंग के एंड में जो है तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और खुशी से अपने घरों को वापस जा सकें। In Jesus' name we have prayed. Amen. यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। So we shall be looking at Luke chapter 5 verse 17 to 25. Luke chapter 5 from verse 17 to 25, and I will read. ओके। लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 17 ता 25 आयत तक पढ़ेंगे। Now it happened on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Then, behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, "Why are you reasoning in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Rise up and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins," he said to the man who was paralyzed, "I say to you, arise, take up your bed and go to your house." Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. May the Lord bless the reading of his word in Jesus' name. Amen. आमीन। हम 17 ता 25 आयत को पढ़ेंगे बहन स्टेफी के साथ मिलकर। एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरफ के मुअल्लिम वहाँ बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ ही बढ़ती थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मखलूज था और चारपाई पर लाए और कोशिश की कि वे उसे अंदर लाकर उसे उसके आगे रखे। वर्स 19। और जब भीड़ के सवाल ने उसको अंदर ले जाने की राह न पाई, तो कोठरी पर चढ़कर खपरिये उसे कोठरी समेत भीड़ में
Amen. So we have seen that when there was no way of getting into the place where Jesus was, और देखें कि जब हम ये कलाम को सुनते हैं या इस पर अमल करते हैं तो हमें जो है एक जो है हमें कायम होती है। हम कहानी को पढ़ते हैं जिसमें जो है बहुत सारी जो है कबीले के लोग जो शामिल थे, यानी कि फकीह फरीसी और यहूदिया के लोग जो है इसमें शामिल थे, और वो ये सोचते थे कि ये कुफर जो है बकता है। the men went up on the housetop and lowered their friend before and placed him before Jesus. और देखें कि जब हम जिस तरह से एक आदमी या एक औरत जो है खुदा के कलाम की मुनादी करती है तो बैठने वाले जो हैं उसके खिलाफ जो है मंसूबे बांध रहे होते हैं या उसकी हर एक हरकत को जो है देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि ये किस अंदाज में जो है खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है या कर रही है। And the Lord Jesus Christ noted that the Bible says that Jesus saw their faith. और देखें कि इसी तरह से जिस तरह से आप हमें बहुत गौर व खौफ से देख रहे होते हैं, इसी तरह से हम भी आपको बड़े गौर व खौफ से देख रहे होते हैं। हमारी नजरें जो है आपकी तरफ होती हैं कि आप किस तरह से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आया कि सिर्फ सुन ही रहे हैं या इस पर अमल भी कर रहे हैं। And so we noted that even though men of strange religion may prevent us from accessing the power of God, and hypocritical men may prevent us from accessing the power of God, yet faith will bring us directly before the power of God. और हम खुदा की ताकत को जो है लेते हैं अपनी जिंदगी में कि खुदा की ताकत किस तरह से हमारी जिंदगी में आती है। ये खुदा का कलाम जो है ये हमारी ताकत है। जब इस कलाम पर हम अमल करते हैं तब ही हमारे अंदर खुदा की ताकत आ जाती है। Faith in God means that we are irrevocably believe, we are convinced that God can do what we want Him to do. और खुदा का जो कलाम है वो ये चाहता है कि हम जो है अपने मुंह से ये इकरार करें कि वाकया ही खुदा जो है वो बरकत देने वाला है, वाकया ही खुदा जो है वो हमारी हर एक बात को सुनने वाला है, इस पर अमल करने वाला है, यानी कि वो हमें जो है हर एक मौत के साए की बात से बचाता है। So those four friends were irrevocably convinced that all they needed to do was get their friend in front of Jesus and his matter will be resolved. कई लोगों की जो है ख्वाहिश होती है कि हम जो है अपने खादिमीन के जो है पास होकर बैठें, और कई होते हैं जिनको डर होता है कि अगर खादिम की नजर जो है हम पर पड़गी तो वो हमें जो है सब मजमा के सामने जो है वो हमें उठाएगा और पूछेगा कि मैं कलाम में से क्या सुना रहा हूँ। Faith does not mean that we know how it will be done. It means we know who can do it, and that person is God. और जो ईमान होता है उसका ये मतलब होता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम सिर्फ ईमान ही रख रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ यकीन ही रख रहे हैं। उसका ये मतलब होता है जब हम ईमान रखते हैं उसमें गवाही भी कायम होती है, फिर हम जो है उस गवाही के वसीला से जो है हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। In this story we see that when Jesus saw the man, Jesus said to the man, "Your sins are forgiven you." और देखें कि गुनाह की वजह से जो है मौत भी हमारी जिंदगियों में आई है। गुनाह की वजह से हम जो है हम भटके हुए हैं, गुनाह की वजह से हम बहुत सारे जो है झूठ मकार जो है बकते हैं, कुफर बकते हैं, लेकिन जब हम उस गुनाह में से गुजरते हैं तो हमारे And the Pharisees and scribes who were there began to wonder, how can Jesus be forgiving people's sins, something that only God can do? और आप लोग भी जो है आप में से कोई भी जो है यही सोच रहा होगा कि खुदावंद यसुल मसीह ने ये कहा गुनाह माफ हो गए, यानी कि वो गुनाह अलूदा था तो उसके गुनाह जो है माफ हुए हैं,
और वहां बैठे जो मजमा में बैठे हुए लोग थे जो खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे थे, वो ये कहने लगे कि खुदा के अलावा जो है किसको हुक्म मिलता है कि वो गुनाह की माफी दे सके. And when Jesus knew what they were saying in their hearts, he confronted them and said, "Why are you reasoning like this in your heart?" और देखें कि हमारे दिलों में जो है खुदा यीशु मसीह का कलाम आ जाता है. जब हमारे दिलों में खुदा यीशु मसीह का कलाम आता है, तब ही हम बरकत पाते हैं. He said to them, "Which is easier to say, your sins are forgiven you, or rise up and walk?" और हम देखें कि खुदा जो है वो कलाम सुना रहा है, और लोग जो है, कई लोग जो है उस कलाम को सुनकर अपने दिलों में रख रहे हैं, और कई लोग जो है अपने उस कलाम पर भी अमल नहीं कर रहे, बस उधर बैठने का जो है वो नाम कर रहे हैं, या उसको कह लें कि वो सिर्फ जाहिर कर रहे हैं कि हम उधर बैठे हुए हैं. But to prove to you that the Son of Man has the power to forgive sins, he said to the man, "Rise up, take your bed and go home." और खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमें और ज्यादा जो है यही बरकतें देना चाहता है, ताकि हम इस कलाम के वसीला से बेहद ज्यादा जो है बरकतें पा सकें. By that statement, Jesus was able to bring together the forgiveness of sin and the healing for that man. और देखें कि लोग जो है वो चाह रहे थे कि खुदा यीशु मसीह जो है उसे बरकत बख्श दे, उसे शिफा बख्श दे. और जब गुनाह की माफी आई, जब तौबा किया उस आदमी ने, जब उस आदमी को लेकर आए और उसको छत से जो है उतार रहे थे और यीशु के सामने किया, तब उसके गुनाह जो है वो माफ हो चुके थे, क्योंकि वो अमन का शहजादा है और वो अमन ही पसंद करता है. आमीन. So today I want to briefly speak about the power to heal also forgives sin. और खुदा यीशु मसीह जो है हमें इसलिए वो जो है बरकत देने वाला है या दे रहा है कि हम उस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को तब्दील कर सकें. Whenever we speak about the power to heal, all we think about are diseases and the like, which we want healing for. और देखें कि जब खुदा यीशु मसीह जो है बरकतें देता है, वो बेशक कितने ही अरसे का बीमार हो या बेशक वो बहुत ज्यादा जो है बीमार हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह से बरकत बख्शता है. आमीन. The last thing we always think of is the issue of sin in our lives. और देखें गुनाह की मजदूरी जो है मौत है, और जब गुनाह हम करते हैं, तो जब हम माफी की तलब करते हैं, तब हम जो है शिफायाब हो जाते हैं. But in this story, the Lord Jesus Christ tells us that the man's paralysis was the result of sin. और इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि हमने किस तरह से अपने गुनाहों से माफी तलब करनी है, या हम अपने गुनाहों की माफी किस तरह से मांग सकते हैं. अगर हम बीमार हैं तो हम अपने गुनाह की वजह से बीमार हैं. अगर हम शिफायाब हो चुके हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने गुनाहों से तौबा की है, तब हम शिफायाब हो चुके हैं. Whenever God wants to solve a problem, he makes sure that he attacks the problem from the root so that the problem will not arise again. और जब कभी खुदा जो है वो हमसे हम कलाम होना चाहता है, तब हम उसकी बातों पर जो है तवज्जो नहीं देते, तो इसी वजह से जो है हमें बीमारियां आती हैं, इसी वजह से जो है हमें परेशानियां आती हैं. For example, when he cursed the fig tree, the Bible says that the fig tree began to dry up from the root. और देखें मिसाल के तौर पर, अगर हम विक्ट्री में शामिल हो चुके हैं, अगर हम खुदा यीशु मसीह के अहद में शामिल हो चुके हैं, हम उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, तभी हमारी जिंदगियां जो है वो यानी कि फतह का जो निशान है वो हमेशा जो है हमें रखना चाहिए, बुलंद रखना चाहिए. If you cut a tree by the stem, you are not going to destroy the tree. The tree will in fact now grow with many branches.
afterwards. और देखें कि बेशक हम जो है यहाँ पर कलाम सुना रहे हैं, हमारा मकसद है कि हम दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदावंद की मुनादी करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके बच्चे जो हैं वो खुदा की मुनादी करेंगे और आप तब समझेंगे कि हम किस कलाम को जो है फैला रहे थे या किस हुक्म को जो है उसकी हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे थे। So that whenever Jesus wants to solve a problem, he makes sure that he destroys the cause of the problem so that it doesn't come back again. और खुदावंद यीशु मसीह हमें और ज्यादा इस कलाम के वसीला से बरकत दे ताकि हम भी अपने आप को तौबा तक पहुंचाएं, ताकि हमसे ये बीमारियां जो हैं वो दूर हो सकें। In John chapter 5, we read the story of the man at the pool of Bethesda. और हम इस आदमी की कहानी को अपनी कहानियों के साथ जोड़ें ताकि उस आदमी की जगह पर अपने आप को रखें कि वो किस तरह से बेबस था कि वो कोई उसे लेकर आ रहा था और उन्हें ये यकीन था कि जब ये यीशु के सामने जाएगा तब इसकी शिफा जो है वो वाकया ही हासिल जो है वो हो जाएगी। This man too had a problem that would not allow him to be able to move. और देखें कि अगर चाह किसी आदमी में या किसी औरत में बीमारियां लागू हो चुकी हैं तो उसके गुनाहों की वजह से हो चुकी हैं या नाफरमानी की वजह से हैं। And he had been in that condition for 38 years before Jesus came to meet him. और हमने जो है लोगों को जाकर इस कलाम की मुनादी देनी है ताकि लोग इस कलाम की बदौलत जो है वो तसल्ली पाएं, वो इत्मीनान पाएं, ताकि उनके अंदर जो है एक जज्बा कायम हो कि हमने खुदा यीशु मसीह से जब हम तौबा करेंगे तब हमारी जिंदगियां जो है वो बच सकती हैं या तब्दील हो सकती हैं। And when Jesus met him, a few things happened, but eventually Jesus healed him and the man began to move about. और देखें कि जब हम अपने आप को उस वक्त पर लेकर चलते हैं तो हम जो है बेबस हो चुके हैं, हमारी कोई जो है कोई दुआएं जो है वो काम नहीं आ रही, लेकिन हम जब भी यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारी दुआएं भी जो है वो जवाब देती हैं। खुदा यीशु मसीह भी हमें जवाब देता है और कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। And after Jesus later saw the man in the temple moving around, he told the man, make sure that you do not sin again, lest something worse happen to you. और देखें कि यीशु मसीह ने उस आदमी से ये नहीं कहा कि मुझे पता है तो गुनाह दोबारा करेगा, उसने कहा है कि सारे जो ये गुनाह इसकी जिंदगी में हो चुके हैं वो माफ किए जाएंगे, यानी कि वो माफ हो चुके हैं। So Jesus was saying that the man's problem was actually sin that kept him in that state for 38 years. And now that he had been healed, he should ensure that he does not sin so that something worse does not happen to him. और देखें कि कुछ लोग जो हैं वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे खुदा यीशु मसीह के कलाम को, यानी कि ये कुफर बकता है, ये किस तरह से उसे शिफा दे सकता है। जब वो अपनी चरपाई खुद लेकर जा रहा था तब लोग जो है उसकी तरफ निगाहें कर देख रहे थे कि वाकया ही खुदा मौजूदात करने की कुदरत रखता है। So if there's anybody who is still wondering what's the connection between forgiveness of between sin and sickness, there is a connection. और देखें कि अगर चाहे कोई बीमार है वो खुदा से तौबा करे, तौबा की नौबत लेकर आए ताकि खुदा यीशु मसीह उसे तौबा करने का सिला जो है उसकी शिफा का दे। But I must note that it is not every sin that is related to sickness or disease. Sorry, let me put it differently. सब जो है गुनाह ये नहीं है कि आपने जो है उस उन गुनाहों की माफी करनी है, आपने हमेशा जो है खुदा यीशु मसीह के साथ चलना है ताकि खुदा यीशु मसीह आपको और ज्यादा बरकत दे और अपने गुनाहों की माफी जो बीमारी की सूरत में आप पर हमला कर रही है आपने उससे जो है शिफा याबी हासिल करनी है। Sorry, what I meant to say is that it is not every disease
that is about sin. It's not every sickness that is because of sin. और देखें हर जो गुनाह है वो बीमारी की सूरत में नहीं, बल्कि हर एक गुनाह की भी इकसाम होती है कि हम अगर झूठ बोलते हैं उसकी मजदूरी जो है हमें मौत है, और जब हम किसी का कत्ल या कोई मंसूबा बनाते हैं तब हम पर जो है हमारे ही गुनाह जो है, हम जो किसी के खिलाफ जो है मंसूबे बांध रहे हो तो वो हम पर ही वापस जो है आते हैं. For example, in John chapter 9, there was a man who was born blind, and Jesus' disciples asked Jesus, who sinned, this man or his parents? और इसी तरह से यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. But Jesus answered and said to them that it was not the man who sinned, neither was it the parents' sins that caused the man to be blind, but this man was born blind so that God can be glorified in the man's life. और देखें कि हम खुदा यीशु मसीह को जलाल जो है प्रस्तिज के वसीला से देते हैं. अगर हम गुनाहों की माफी की तलब करते हैं तो खुदा यीशु मसीह को, इसका मतलब है हम अपना नजात दहिंदा मानते हैं. आमीन. And eventually Jesus opened the blind man's eyes and God was glorified. और देखें कि उसने जो है अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दा को जो है उसने जिंदा किया. So we are trying to let us understand that not every disease is the result of sin, but yes, there are diseases that are the result of sin. और देखें हर एक बीमारी जो है वो गुनाह नहीं होती, बल्कि बीमारियां जो है वो आपके गुनाहों की वजह से आती हैं. And when there is a disease related to sin, the solution is forgiveness of sin. और अगर आपके अंदर बीमारियां हैं तो इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुनाहों की वजह से जो है वो आपके अंदर आ चुकी हैं, और जब आप माफी की तलब करते हैं तो खुदा जो है वो आपको भरपूर तरीके से बरकतें देता है. A person who has faith in Jesus will accept the report that Jesus gives concerning him. और अगर कोई आदमी या औरत जो है खुदा उन पर यकीन रखती है तो वो इस चीज को अपनाए. For example, if you go to the hospital and the doctor tells you that this is your problem, you will believe the doctor. और आप ये समझें कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब आप इस डॉक्टर के पास आते हैं तो सिर्फ आपको माफी की तलब करनी पड़ती है. आमीन. You don't need to reason what the doctor, why the doctor is saying what he saying. You just believe the doctor. और देखें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे जो है डॉक्टर पर यकीन रखते हैं और आप उसको जो है अपना मान कर जो है आप उस उधर पैसे भी खर्च करते हैं और जाकर दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन खुदा जो है वो आपको मुफ्त में जो है शिफा देता है. We believe the doctor because we believe that doctors can solve problems of diseases and sickness. और आपका जो खुदावन यीशु मसीह जो है डॉक्टर है वो आपको हमेशा बरकतें देना जानता है. In the same way, we must believe Jesus because he's the one who can resolve all of life's issues. और वो आपके हर जिंदगी के इशू को जो है वो आपकी जिंदगियों में से निकाल देता है. Because Jesus can forgive sins, therefore, whatever he says is the result of sin, we must believe it. और खुदावंद यीशु मसीह से जो है वो हम कलाम बढ़कर If Jesus says forgiveness of sin is the solution to a problem, then forgiveness of sin is the solution to that problem. और खुदावन यीशु मसीह जो है
वो हमारी जो है हमें जो है बरकतें अता करने वाला है, और खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें और ज्यादा जो है भरपूर तरीके से बेहद बरकतें देता है। आमीन। So that the moment that man's sins were forgiven him, it solved the problem. और खुदा यीशु मसीह जो है उस इंसान की वो जो है दे रहा था, यानी कि बरकतों को दे रहा था, और उसकी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया। The forgiveness of that man's sin was as good as saying to the man, rise up and walk. और उसने कहा उठ और अपनी चरपाई उठा और चल फिर। Therefore, we can conclude और इसी वजह से हम जो है वो उठा और उसने चरपाई उठाई। that when you hear that the power of God is present to heal, और जब हम उसमें ताकत आई, खुदा की ताकत आई, that healing also includes the matter of sin. और उसमें खुदा की ताकत आई और वो खुदा यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लग गया। आमीन। When Jesus forgives your sin, he cancels out all your sins. और जब खुदा गुनाह माफ करता है, जब यीशु गुनाह माफ करता है, तो वो आपके गुनाहों की बदौलत जो है वो आपको बरकतें देता है। आमीन। And everything that happened because of sin is also removed. और हर वो चीज जो है वो हमें बख्शता है जो कि गुनाह की वजह से आई है। And since it was sin that caused that man to be paralyzed, once sin was forgiven, his paralysis was also taken away. और गुनाह जो है वो गुनाह होता है, बेशक गुनाह जो है वो खुदा के हजूर वो गुनाह ही जो है वो होता है। So when there is a problem that is the result of sin and your sins are forgiven, you should know that that problem has also been removed. और खुदा जो है आपके गुनाहों की माफी को देना चाहता है, ताकि आप उसके गुनाहों की माफी को देकर अपनी जिंदगियों को उस गुनाह आलूदा बीमारी से बचा सकें। For example, if you are sick because you did not listen to the voice of God, when you repent to God, He will forgive your sin and the sickness will be removed. और देखें कि खुदा से जब आप माफी की तलब करते हैं, तो आपकी माफी की वजह से खुदावंद आपको मुआफ करता है और आपके गुनाहों से आपको छुटकारा देता है। Therefore, it is important that we live righteously before God, so that we do not sin and we do not have diseases resulting from sin. और इसी बदौलत जो है आप खुदावन यीशु मसीह के हुजूर पहुंचे जा सकते हैं। But if there is a sickness that is not because of sin, the power of God is also able to heal that sickness. और खुदा की ताकत जो है वो आप में आ जाती है ताकि वो आपको बरकत दे। आमीन। So the first thing we always want to do when we have issues or problems is to ask ourselves, is there sin in my life? और जब आपकी जिंदगी में कोई इशू आता है या कोई आपकी जिंदगी में मुब्तला हो जाती है, तो सबसे पहले आपने खुदा यीशु मसीह से तौबा करनी है। If there is sin in my life, then what do? I repent before God. और आपने उस ईमान की ढाल को लेकर अपनी जिंदगी तब्दील करनी है।
And once I have repented before God, the sickness will be done away with. और जब हम खुदावन से जो है तौबा करते हैं तो बीमारी जो है वो चली जाती है. But if I have repented before God and the sickness has not gone, then it means that it is a sickness not arising from sin. और फिर जब बीमारी जाती है तब हम वाकया ही में शिफायाब हो जाते हैं. आमीन. And then it requires my faith so that I can be healed by God. और देखें कि जब हम मसीह के पास चले जाते हैं तब जो है हम शिफायाब हो जाते हैं. So right away, I want to ask a question. Is there anybody here who has not yet surrendered his or her life to Jesus? If such a person is here, then there is still sin in that person's life. और अगर चाहे यहाँ पर कोई मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी जो है खुदा को नहीं दी, तो वो अपनी जिंदगी खुदा को दे सकता है. Yes, 2 ladies is standing and Oh. 1 man. Okay, good. So I want us to let's pray for them, or rather, let us ask them to repent of their sins at this point in time. They should repent before Jesus about that their sins, that they no longer want to live a life of sin, and that they want to come to Jesus Christ. और आए हम सब दुआ करें ताकि खुदा मसीह हमें और ज्यादा बरकतें दे. They should ask Jesus for forgiveness of their sins. They should tell him they no longer want to sin, and they want him to come into their lives and live in their lives from now on. और आप जो है अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दें ताकि वो आपको और ज्यादा जो है बरकत दे. I will give them about 30 seconds to quickly do that. और हम अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दें. Okay, let me now pray for them. Heavenly Father, I bring these ones before you today. आसमानी बाप तो हमें और ज्यादा बरकत दे और हर एक के लिए बरकत चाहते हैं. I thank you that they have owned up that they are sinners and they want your forgiveness. और आसमानी बाप ताकि तू हमें बरकत देने वाला है, इसीलिए हम तेरी इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं. I pray that, Father, you will forgive them of their sins. और आसमानी बाप तो इनके गुनाहों से इनकी माफी को जो है मांगते हैं. And cleanse them totally of sin. और इनकी सफाई कर दीजिए, इनके रूह की सफाई कर दीजिए ताकि ये तेरे कलाम को पढ़ सके. Everything, every disease or sickness or any ailment that has been in their lives as a result of sin is now cancelled in Jesus' name. और हर एक बीमारी को अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं. Make them new people again. And help them to begin to walk righteously from now on. In Jesus' name I have prayed. Amen. और ये रास्तबाजी के रास्ता को अपना सके यीशु मसीह के नाम से. आमीन. The rest of us, let me just pray for everybody now and then we'll close. और आए हम सब अपने सरों को झुकाएं. जितने सर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर नहीं झुके, हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम सब जो है दुआ करेंगे, क्योंकि खुली आंख जो है वो खुदा का मुकाबला करती है. इसीलिए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे और खुदावंद से फरियाद करेंगे. Heavenly Father, आसमानी बाप, I want to thank you for our meeting today. और आज की मीटिंग के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं. As many as have heard your word today,
और आसमानी बाप हर एक ने तुझे जो है कबूल किया है, तेरी बंदी को, तेरे बंदा को कबूल किया है। Send your power to heal in their lives. और इनमें जो है आसमानी बाप इनमें ताकत अता कर दे, ताकि ये तेरे कलाम की ताकत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जा सके। Everything that requires healing in their lives, Father, please heal them in Jesus' name. और आसमानी बाप जितनी भी जरूरियात है इनकी, इनको दे दीजिए और इन्हें और ज्यादा बाप जी ने और ज्यादा बरकत अता कर दीजिए। Let your joy fill their hearts. और इनके दिल जो है वो खुशी और इत्मीनान में रहें। And let them go to their homes rejoicing in you. और आसमानी बाप ये आज खुशी की खबर जो है यहाँ से लेकर जाएं। And in their homes, let them continually rejoice in you. जो तेरा कलाम खुशखबरी है, यही जो है वो खुदाम यीशु मसीह अपने साथ लेकर जाएं। In Jesus' name we have prayed. Amen. यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। Amen. God bless you. इसी तरह से God bless you too, Dad.